Hello everyone, good morning. So today we will see the one of the storage service from the AWS. We call it the simple storage service. So before going to simple storage service, we have other option also like EBS, then EFS, and now S3. So what are the differences between them and why we specifically use the S3? Okay, so these are the differences we will see right now, and then we come back to S3. Okay, so we have the EBS volume. Okay, EBS, Elastic Block Storage, one of the service that we have in the AWS. Okay, again, this is the kind of storage service. Okay, so this is the kind of storage service, and we will store it in externally. This is kind of external device, like your SSD or pen drive that we just insert it to the one of the EC2 instances. Okay, so the data inside that EBS volume is stored in the kind of block. Okay, this is the kind of storage. So we have 1 GB data, suppose. So this 1 GB data is not, storage is totally. It's storage like in the chunks. Okay, so one of the these block are stored in a serial fashion. Okay, so 1 GB data, okay, is divided into chunks and it will store in the block. Okay, so this kind of storage we have in the Elastic Block Storage, and uses that we can connect this external drive to our EC2 instance. Okay, on the cloud, for the virtual machine we say the EC2 instance, and we can attach the EBS volume for this. Okay, so now what is the limitation of this? So limitation is that we can connect this EBS volume to only single instances at the same time. Okay, and this is the only subnet level. So inside the VPC, this is only the subnet level. You can't attach this particular EBS volume to the instance present in the other subnet. One thing, and also is that we can attach it only one instance at the same time. So if I want to attach this EBS to other volume, then I have to detach first from the EC2 instance, this one, and then I have to attach it to the other EC2 instance which is present in the same subnet. The second one, we have the file storage. Okay, so coming back to file storage, so this is the file storage that we are using in the AWS. One of the service we can see EFS, Elastic File System. So what is difference and why we are using? So the in the Elastic File System, the file type, whatever the files type, storage. Okay, the data is storage in the file type in that EBS EFS volume, Elastic File Storage. So now, why do we using? So this is in the region specific. Okay, again it is region specific, and inside the VPC we can attach it to multiple instances at the same time. Let's say I have in the VPC I have multiple subnets. Okay, three subnets, and inside that I have EC2 instances, and one of the EFS system is created. It's kind of create and forget kind of elastic file system. So I can, no worry, I can attach to multiple EC2 instances at the same time. Okay, so this is the one of the storage kind of system, and we have advantage. So here, what is advantage? I can store here the common related files like SSL certificate. So this is required SSL certificate for one of the applications running over the EC2 instances in the particular VPC. Okay, so I can store here the SSL certificate, then the kind of other documents. Okay, the username password which is commonly I use here, or the testing user can commonly use their username and ID. Okay, and token for the login to this application. So this kind of file system I can store. Also I can store the code that the backend that required for this particular application. Okay, so some kind of code I can write here. So so here advantage is that I can use the file we store it in the EFS for the multiple EC2 instances, and that user can access this elastic file. Okay, the third one is coming like EFS. Okay, S3, sorry, S3 third one. So it's a simple storage service that is we are using. Okay,
simple, and it is storage and service. We commonly call it as S3. Now, this is the service that we are using. It is limitation for it is overcome the limitation like EBS volume and EFS. Now its advanced version of EFS is S3. How it's global, so anyone can access this S3 from anywhere. Okay, you can see the example is that you will see the Google Drive. Okay, the same kind of thing. So Google Drive anyone can access from anywhere. The same kind of thing S3. So why we using the storage kind of service the S3? Okay, let's say I have the Jenkins server. I'm running the Jenkins server and I have to store my logs. Okay, obviously I will store my logs in the local of that particular Jenkins servers, and then I can write the script and timely, let's say at the end of the day, the logs of that Jenkins servers will be uploaded over the S3. So now I'm working in the Mumbai, and now I have one more team which is in that North Virginia. Okay, so at the end of the day, that particular logs can be seen by North Virginian, my team. Okay, that is used. That means I can access whatever the data is present inside the S3 globally. Okay, one more thing can be accessed. Okay, so here is catch up like we can use the data. I mean, we can store the data and access anywhere. Okay, this is the kind of S3 file storage service that we can use. Simple storage service. So all over the world, we can use this simple storage service. Now we will see the inside the simple storage service, how we can use it. Okay, and how can create. So before going to that, we will see the definition. What is a simple storage service? Okay, see the Amazon S3 or the simple storage service is a service offered by the Amazon Web Services that provide object storage of web service interface. Okay, let's say what is object storage? Okay, so here the storage type is object storage. Okay, let's say I have 1 GB of data, and as previously I told, like the data is divided into chunks and it's stored in the block. But here the data is storage as kind of object. It means the whole data is storage at the same time. While we uploading this, we will use a multi-part upload. Okay, we will use a multi-part upload here. So this kind of thing we can use, but just remember like we are storing the data as kind of objects. Okay, coming back to that particular slide, this is similar to Google Drive that I can already told. Okay, this is not like a block storage. We cannot mount anywhere. Yes, we cannot mount this anywhere because it's not needed any EC2 instances. Okay, we will create it and we can access anywhere. It's only drive here. Do not need a create any file system. Yes, we not need any file system. It's designed to make a web scale computing easier and IT people. Yes, देखो अभी यहाँ पे क्या होता है, अगर मुझे कोई एप्लीकेशन होस्ट करना है, ठीक है, आई कैन होस्ट द एप्लीकेशन। तो इसमें एक फंक्शन है किसके अंदर, इस S3 के अंदर। तो हम यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड का जो भी एप्लीकेशन है वो होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी एप्लीकेशन है और वो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेसिकली S3 is a storage for the internet which has simple web service interface and simple storing and retrieving the data। यहाँ पे देखो retrieving data भी है, मतलब हम data retrieve भी कर सकते हैं anywhere from any of the world। और यहाँ के लिए mandatory क्या है, आपको इंटरनेट चाहिए, राइट। इंटरनेट यहाँ पे चाहिए तो ही आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि ये वेब सर्विस है वो दी क्लाउड और ये इंटरनेट पे ही सब चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका एडवांटेज जो भी है, जैसे कि यहाँ पे सिक्योर है, जहां तक हम लोग यहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटी दे रहे हैं, सिक्योर है, ऑल टाइम अवेलेबल है, वेरी लो कॉस्ट है। ओके, माइग्रेशन भी पॉसिबल यहाँ पे और मैनेजमेंट बहुत सिंपल है यहाँ पे। तो जब भी हम लोग देखो अभी ये ग्लोबल स्टोरेज है, तो S3 इज ग्लोबल। ओके, ग्लोबल सर्विस। तो यहाँ पे मतलब ग्लोबल से हर एक लोग इसको एक्सेस करने वाले हैं।
तो यहाँ पे वन मोर एस्पेक्ट्स आता है, सिक्योरिटी एस्पेक्ट। ओके, बिकॉज ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेसिबिलिटी अवेलेबल है, तो हमें हमारा डेटा यहाँ पे बहुत सारा सिक्योर करके रखना पड़ेगा। जैसे कि हमारे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि आपको पब्लिक एक्सेस यहाँ पे देना है टू S3, आप वहाँ वो देख सकते हो। पॉलिसी दे सकते हो बकेट को कि मतलब कौन IAM यूजर यहाँ पे क्या करे, इसको एक्सेस करे। और आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटर भी इसको इनेबल कर सकते हो, यानी कि जो आपका डेटा है वो कोई बंदा डिलीट ना कर सके जब तक वो प्रोवाइड ना करे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटर। यस, अगर उसको S3 का फुल एक्सेस रहा तो भी वो डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, MFA एक्टिव करके रखा है। और देखो कोई बकेट के अंदर ये बकेट लेवल रहता है MFA। और और दूसरा है हमारा एनक्रिप्शन, KMS की। ये आपके बकेट के लेवल पे रहता है, ये भी काइंड ऑफ एनक्रिप्शन है जो कि हम लोग बकेट डिलीट नहीं कर सकते। उसके बाद आता है S3 ऑब्जेक्ट लॉक, मतलब आप जो भी डेटा इसके अंदर डंप करने वाले हो, किसके अंदर, S3 के अंदर, वो लॉक हो जाता है और आप कोई भी डेटा मतलब डंप नहीं कर सकते। ये वन काइंड ऑफ सिक्योरिटी है। और ये वर्जनिंग है। अब ये वर्जनिंग क्या है हम थोड़ा आगे देखेंगे, एक ओवरव्यू ले लेता हूँ। अगर मेरा कोई डेटा, सेम काइंड ऑफ डेटा अगर फिर से मैं डंप कर रहा हूँ S3 के अंदर, तो वो क्या होगा, वर्जन बना देगा उसका। ठीक है, वर्जन बना देगा। और यहाँ पे क्या चाहिए मुझे मैंडेटरी, मेरा वर्जनिंग जो है बकेट का वो इनेबल होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग वापस जाते हैं प्रैक्टिकल की तरफ और देखते हैं कि हम लोग कैसे S3 बकेट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड पे, तो ये सब फीचर है जो AWS हमें S3 से प्रोवाइड कर लेता है, जैसे कि IAM एक्सेस, एनालाइज S3, ये भी एक काइंड ऑफ फीचर है। लैम्ब्डा एक्सेस भी है, एक्सेस पॉइंट भी आता है। ओके, तो हम लोग अभी बकेट के अंदर जाते हैं। अभी देखो ये S3 है मेरा, और ये ग्लोबल है, एक पर्टिकुलर रीजन के लिए S3 बनाया हुआ है। तो इसके अंदर देखो अभी मुझे बकेट क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं बकेट यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, आप S3, जो आपका S3 है ना, S3 के लिए स्टोरेज अनलिमिटेड है। ठीक है, अनलिमिटेड S3 के लिए स्टोरेज है। लेकिन जो बकेट है, जो आप S3 के अंदर बकेट बनाओगे, उसका मैक्सिमम स्टोरेज 5 TB है। ठीक है, अगर मैं एक, यहाँ पे मैक्सिमम स्टोरेज 5 TB है, अगर मैं एक और बकेट बना दूं, लेट्स से मैंने एक बकेट बनाया, उसके अंदर 5 TB डेटा मैंने डंप कर दिया। लेकिन अगर मुझे और अगर 1 TB डेटा अगर स्टोरेज करना है इसके अंदर, तो मैं इसको अंदर डंप कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये एक बकेट क्रिएट होगी, लेट्स से वो 5 TB की एक बकेट है, तो और एक बकेट इसके बैकएंड में क्रिएट होगी और इसको माउंट हो जाएगी। और इसका भी कितना रहेगा, मैक्सिमम स्टोरेज 5 TB। तो ये ऐसे वर्क करता है। ठीक है, हमें ओनली एक ही ARN दिखेगा, वन बकेट, हमें एक ही ARN दिखेगा इस बकेट का। लेकिन एट द बैकएंड में आप ये चेक करोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक और बकेट इसको अटैच हुई है, ये इमेजिनरी है। ओके, एक बकेट अटैच हो जाती है और 5 TB होने के बाद फिर यहाँ पे भी डेटा आपका डंप होने लगता है। ठीक है, तो आप मैक्सिमम कितना भी डेटा यहाँ पे डंप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो कहने का ये है कि आप नेस्टेड लूप नहीं बना सकते, मतलब नेस्टेड बकेट नहीं बना सकते, बकेट इनसाइड बकेट ऐसे नहीं बना सकते। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बकेट क्रिएट कर देता हूँ। अगेन वन ऑफ दिस, ये मतलब स्टोरेज ग्लास है, लेंस। तो यहाँ पे हम लोग ओवरव्यू देखते हैं पूरा, मतलब AWS के अंदर ये जो भी बकेट्स है उसका ओवरव्यू देखते हैं। ये पर्टिकुलर अकाउंट मेरा, और इस अकाउंट में आपको कितने सारे बकेट्स है स्टोरेज के लिए, ये सब यहाँ पे इस स्टोरेज लेंस में आपको दिखेगा। तो चलो फटाफट हम एक बकेट क्रिएट कर देते हैं। ओके, यहाँ पे देखो ये बकेट रीजन वाइज बता रहा है कि यहाँ पे US East 1 में ये बकेट क्रिएट होगा। और मैं बोल रहा हूँ कि मुझे जनरल पर्पज के लिए ये बकेट चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बकेट नेम, आपका बकेट नेम शुड बी यूनिक होना चाहिए। ये इसलिए कि ये बकेट क्या है, यूनिक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एक्सेसिबल है, इसलिए मुझे यूनिक चाहिए। तो लेट्स से कि मैं एक बकेट क्रिएट कर देता हूँ, अल्फोलॉजी। ओके, आपका यूनिक रहना चाहिए। और देखियो अल्फोलॉजी प्रॉड, फिर हम लोग यहाँ पे मैं टेस्ट ले लेता हूँ। ओके, देखो आपका नाम, बकेट का नाम बहुत ही यूनिक होना चाहिए। अब ये मिलेगा या नहीं पता नहीं, हम लोग आगे चल के चेक करेंगे। और ये देखो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, मतलब आपको कौन सी परमिशन देनी है, यहाँ पे ये है। अगर मुझे कुछ एग्जिस्टिंग मेरी कोई बकेट है और उसकी मुझे सेम परमिशन देनी है, तो मैं यहाँ से दे सकता हूँ उसको। ठीक है, मतलब जो भी सेटिंग है वो इस बकेट को लग जाएगी। अब यहाँ पे देखो मुझे ब्लॉक स्टोरेज देना है या नहीं, मतलब पब्लिक के लिए, तो मैं बोल रहा हूँ कि ब्लॉक ऑल एक्सेस नहीं, मुझे पब्लिक रखनी है बकेट। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये कंफर्म करो कि ये अगर अभी टर्न ऑफ करोगे तो ये मतलब बाकी लोगों के लिए मिल जाएगी। अब यहाँ पे वर्जनिंग आता है।
तो इस बकेट के लिए मुझे वर्जनिंग इनेबल रखना है या नहीं? यस, मैं यहाँ पे वर्जनिंग इनेबल रख लेता हूँ। उसके बाद आगे जाओगे तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एन्क्रिप्शन है। अगर आपको कोई एन्क्रिप्शन वगैरह चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो एन्क्रिप्शन के केएमएस भी है, यहाँ पे आप लोग इनेबल कर सकते हो। और बकेट की भी यहाँ से हम लोग इस देखो एसएससी केएमएस, ये बकेट की भी हम लोग इनेबल कर सकते हैं अगर चाहिए तो। अभी के लिए मैं डिसेबल कर देता हूँ और यहाँ पे देखो आप बकेट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, देखो कोई नाम यूनिक होगा या फिर नहीं होगा। यस, ये ऑलरेडी किसी ने यूज किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं यूज कर सकता। बकेट नेम शुड बी यूनिक यहाँ पे बता रहा है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ अल्फालॉजिक प्रॉड टेस्ट, और फिर मैं यहाँ पे रीजन का नाम ले देता हूँ, मुझे नॉर्थ वर्जीनिया में। ओके, अल्फालॉजिक आपको ये अपर लेटर में भी नहीं चाहिए, ठीक है, आपको ये स्मॉल ही चाहिए। ठीक है, अल्फालॉजिक टेस्ट मैं यहाँ पे नॉर्थ वर्जीनिया ले लेता हूँ। चलो आगे चलते हैं। बकेट क्रिएट होनी चाहिए अभी। ठीक है, तो बकेट क्रिएट हो रही है अभी। एक बकेट मैंने क्रिएट कर दी। यस, आप देख सकते हो, व्यू द बकेट, यू कैन सी द बकेट। ओके, आप यहाँ पे देखो इनसाइड कोई भी नहीं है, मेरे वर्जनिंग ऑन है इसलिए मैं यहाँ पे शो वर्जन भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये लोगो तभी दिखेगा आपको जब आपका वर्जनिंग इनेबल हो। ठीक है, आप यहाँ पे देखो ये अलग अलग सेटिंग है। ओके, दिस आर द डिफरेंट काइंड ऑफ सेटिंग वी हैव, and we don't have any object, so I can upload here object. First is the bucket, you can see this kind of thing, and here buckets, inside that you will see the list of buckets, and you can see the region, and this is the one of the IAM service which analyze your buckets. Okay, and data of the creation, I can go inside and I have to upload one of the data, so I can upload. And using the CLI you can also upload the data or SDK that provided by Amazon you can use. So I have to add one of the files from the download folder. Okay, so I can add here the docker.3, one of the PDF file I have. Okay, so coming inside you can see here the one of the data. Okay, I just open it and the upload the file. You can provide the permission. Okay, what was the permission for this? And using the policies that we have from the IAM user for the S3, we can grant that access at the file level also, directory level also. ओके, तो देखो अभी फाइल अपलोड हो रही है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो तो मुझे ये फिर एक फाइल मिल गई। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे वर्जनिंग इनेबल की है, अगर मैं एक और फाइल अगर यहाँ पे अपलोड कर दूँ तो उसका वर्जन बन जाएगा। जैसे कि मैं सेम सेम फाइल आई एम गोइंग टू अपलोड हियर विच इज docker.3। ठीक है, सेम फाइल मैं अपलोड कर रहा हूँ और मैंने वर्जनिंग इनेबल की है। तो ये इसलिए रहता है कि आपको एक्सीडेंटल एक्सेस अगर डिलीट किसने कर दिया, एक्सीडेंटल डिलीट अगर किसने कर दिया तो वो मुझे रिकवर करना आना चाहिए। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको ऑन करूंगा तो मुझे यहाँ पे एक वर्जन दिख रहा है, ये लोअर वर्जन है और ये मेरा करंट वर्जन है। ओके, नाउ मैं डिलीट कर रहा हूँ। जो भी देखो कोई कोई अगर आया और एक्सीडेंटली उसने एक फाइल डिलीट कर दी जो भी डेटा है, ठीक है, अब वो मैं डिलीट कर रहा हूँ तो इसको मैं कैसे रिकवर कर सकता हूँ, ये भी है। ये तो वर्जनिंग का ब्यूटी है कि आप उसको कैसे रिकवर कर सकते हो। ठीक है, ये डेटा मैंने डिलीट कर दिया। नाउ आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डेटा हियर। ओके, इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। देखो जैसे ही मैंने शो वर्जनिंग किया तो मुझे यहाँ पे मिलेगा एक मेरा ये वर्जन है और ये लोअर वर्जन है और एक डिलीट मार्कर क्रिएट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मुझे रिकवर करना है तो देखो मैं कैसे कर सकता हूँ इसको। डिलीट मार्कर को आपको डिलीट कर देना है। ठीक है, डिलीट मार्कर को आपको परमानेंटली डिलीट कर देना है, तो मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट रिकवर होना चाहिए अभी। ठीक है, और मैं इसको शो वर्जनिंग ऑफ कर देता हूँ तो आपका रिकवर हो गया, जो भी ऑब्जेक्ट है वो रिकवर हो गया। ठीक है, अगर मुझे डेटा परमानेंटली डिलीट करना है विदाउट क्रिएटिंग द डिलीट मार्कर, सो इसको शो वर्जन कर दो और उसके बाद इसको डिलीट कर देना। ठीक है, जैसे ही आप इसको डिलीट करोगे तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। लेट्स सी। ओके, मैंने इसको क्लोज कर दिया है, चेक कर लेते हैं हम। देखो आपको शो वर्जन भी किया तो कोई भी डेटा मुझे यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। ठीक है, नाउ again I'm going to upload one of the file and we will see this file over the setting inside what we are present in the from the S3 buckets. ठीक है, ये सारी अभी एक फाइल मैंने अपलोड कर दी है यहाँ पे।
तो यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी के अंदर आप जाओगे तो आपको सेटिंग दिखेगी और पूरा डिटेल दिखेगा। अब यहाँ पे वर्जनिंग, यहाँ पे आप यहाँ से बकेट की वर्जनिंग डिसेबल भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटर भी यूज कर सकते हो। उसके लिए हमें AWS CLI या फिर AWS SDK चाहिए और REST API फ्रॉम Amazon S3 विच इज प्रोवाइडेड, ये हमें इनेबल करने के लिए, ठीक है। अभी के लिए इसको हम लोग सस्पेंड भी कर सकते हैं और कंटिन्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये टैग्स है, उसके बाद डिफॉल्ट एन्क्रिप्शन सेटिंग है, ठीक है। ये आपके एन्क्रिप्शन के लिए बकेट मैंने कोई किया नहीं है। अगर मैं इसको एन्क्रिप्शन करना चाह रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे एन्क्रिप्शन की इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। और सेव चेंजेस, तो यहाँ पे क्या होगा, एक एन्क्रिप्शन की बनेगी जो कि हमें बकेट के लिए यूज करने के लिए रहेगी, ठीक है। अब ये को इनेबल कर दिया है मैंने, ओके। और ये मेरी ऊपर की एन्क्रिप्शन की होगी एक। आगे चलते हैं, यहाँ पे एक इंटेलिजेंट टियरिंग आर्काइव, ये इसको थोड़ी देर में देखेंगे। और उसके बाद देखो सर्वर एक्सेस लॉगिन है, क्लाउड ट्रेल है, इवेंट वगैरह, नोटिंग इनेबल। नीचे आओगे तो आपको S3 ऑब्जेक्ट भी दिखेगा और उसके बाद स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, ठीक है। देखो अब इसका यूज क्या है, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप वेब पेज होस्ट कर सकते हो जो कि क्या करे कि बाहर लोगों को दिख सकता है ऐसे, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था कि आप क्या कर सकते हो इस पर्टिकुलर, क्योंकि ये ग्लोबल है तो कोई भी मतलब लोग, पीपल, यूजर बाहर से इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर इसके अंदर, इसके फ्रंट एंड में अगर मैंने कोई एप्लीकेशन होस्ट कर दिया, राइट, तो वो तो मतलब ये जरूरी होना चाहिए कि वो मतलब एप्लीकेशन एक्सेसिबल हो बाहर के लोगों को, और मैं बैकएंड में मेरा RDS लगा दूंगा तो वो चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी होता है कि इंडस्ट्री में क्या होता है कि आपका एप्लीकेशन होस्ट होता है एज ए फ्रंट एंड करके ओवर दी S3, और वहां पे आप लोग लॉट ऑफ सेटिंग्स लगा सकते हो, किसके लिए, आपकी परमिशन के लिए। तो वो ही देखते हैं हम लोग क्या क्या हम लोग परमिशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी मेरा पब्लिक एक्सेस के लिए ब्लॉक है, ठीक है, मतलब ये हर एक लोगों के लिए एक्सेसिबल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बकेट पॉलिसी, तो ये डिपेंड करता है, आप जैसे जेसन पे लिखो यहाँ पे बकेट पॉलिसी, जैसे कि यहाँ पे है तो एग्जाम्पल वगैरह, पॉलिसी एग्जाम्पल भी आप बोल सकते हो। तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे हम लोग बकेट पॉलिसी लगा सकते हैं। और इनसाइड दैट वी कैन प्रोवाइड IAM यूजर ARN नंबर, सो ही कैन एक्सेस। लेट्स से कि अगर आप ये बोल रहे हो कि हमें हमारे या फिर कोई और नॉर्थ वर्जीनिया का जो मेरी टीम है उसका कोई यूजर इस पर्टिकुलर बकेट को या फिर कुछ डेटा को एक्सेस करे, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे उसकी पॉलिसी के अंदर उसका यूजर का ARN नंबर दे दो, तो फिर वो क्या करेगा, इसको एक्सेस करेगा, ठीक है। तो ये परमिशन हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। और सेकंड वन ऑब्जेक्ट ओनरशिप, तो हम यहाँ पे रीड राइट का परमिशन दे सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट ओनरशिप के लिए। और ये है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ये बकेट लेवल पे है, ठीक है। मतलब जो भी एक्सेस है वो कैसे देना चाहिए, यहाँ पे देखो बकेट ओनर है, एवरीवन पब्लिक है, ठीक है। ST लॉग्स एवरी ग्रुप ये भी है। तो ये आता है आपके एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के नीचे, ठीक है। क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स ये भी है यहाँ पे जो कि जेसॉन में रहता है। आगे चलते हैं मैट्रिक्स। अब यहाँ पे क्या होता है, आपका जो डेटा है उसका पूरा डिटेल दिखता है यहाँ पे कि आपके S3 के अंदर कितना डेटा है, कितना, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दिखेंगे, यहाँ पे डेटा दिखेगा। और आप जैसे नीचे आओगे तो यहाँ पे स्टोरेज दिखेगा कि कौन से स्टोरेज में कौन सा डेटा है आपका, ठीक है। अभी के लिए मैंने, मेरा एक ही स्टोरेज है स्टैंडर्ड आई, उसको चेंज नहीं किया है, ठीक है। और ये रिप्लिकेशन भी है। मैनेजमेंट जाओगे तो आपको बहुत सारे थिंग यहाँ पे देखेंगे। देखो S3 लाइफ साइकिल रूल, तो ये क्या होता है, स्टोरेज के लिए यूज होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरा ऑब्जेक्ट अगर स्टैंडर्ड 1 में रहा तो मुझे लगेगा $0.023 पर GB पर मंथ, ठीक है। ऐसा रहता है। अगर मैं 1 TB के लिए बताऊं तो $23 पर मंथ, ये TB, ओके। 23 TB या फिर 1 TB के लिए मेरे को $23 आएगा, तो ये मेरा चार्जेस है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मैं लाइफ साइकिल रूल लगा सकता हूँ। तो S3 आपको अलग अलग काइंड ऑफ स्टोरेज क्लासेस प्रोवाइड करता है। तो उस स्टोरेज क्लास में हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैं एक रूल ले लेता हूँ टेस्ट करके, ठीक है। और मैं बोलता हूँ इसके इनसाइड जितने भी मेरे ऑब्जेक्ट हो उसको ये पॉलिसी लागू हो। नाउ जो मेरे करंट वर्जन है, हाउ कैन आई मूव, ओके। दिस इज द स्टैंडर्ड स्टोरेज एंड आई कैन से मिनिमम इज 30 डे, ओके। आई कैन स्टोर हियर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मिनिमम 30 डे यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरा स्टोरेज कितना है अभी देखो स्टैंडर्ड आई में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड आई में स्टोरेज में यहाँ पे देख लेता हूँ। देखो जो आपका स्टोरेज क्लास है S3 के लिए, तो यहाँ पे आपका चार्ज बचाने के लिए, ठीक है,
तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड आय है वो सबसे ज़्यादा रहता है, यहाँ पे चार्ज रहता है, ठीक है। स्टैंडर्ड आय में आपको $23 लगेगा पर टीबी, ठीक है, और ये क्या रहेगा 1 मंथ के लिए। लेकिन अगर यही डेटा में सबसे ज़्यादा मतलब सबसे नीचे डीप ग्लेशियर में आता है, ओके, अगर मेरा डेटा इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस है, मतलब बहुत ही कम बार मैं साल में 1-2 बार यूज़ करता हूँ, डीप ग्लेशियर में अगर मैं ये 1 TB डेटा रखा, ठीक है, 1 TB डेटा अगर मैं डीप ग्लेशियर में रखा तो मुझे कितना डॉलर खर्चा आएगा, $0.99 खर्चा आएगा ये 1 मंथ के लिए। तो इसका मतलब मैं $22 बचा रहा हूँ, ठीक है, पर मंथ के लिए। तो इतना डिफरेंस है इसके अंदर। और इसके अंदर और बहुत सारे स्टोरेज क्लास है, ये सबसे नीचे वाला है और ये सबसे मतलब पहले वाला, ठीक है। तो मैं इतना मेरा स्टोरेज का डिफरेंस आता है फर्स्ट स्टोरेज टू लास्ट स्टोरेज के लिए, $22 का पर मंथ के लिए, ठीक है। तो इतना स्टोरेज आता है। तो इसलिए बहुत सारा डेटा हम लोग क्या करते हैं कि डिप में भेज देते हैं, क्योंकि वो हमें बहुत कभी कभी तो लगता है, इसलिए, ठीक है। वापिस आते हैं हम लोग हमारी चार्ट पे। तो अब यहाँ पे लाइफ साइकिल रूल लगा सकते हो, ओके। जैसे कि मैं डीप ग्लेशियर सीधा यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखो बहुत सारे ग्लेशियर स्टोरेज है, मैं नीचे आया सबसे देखो डीप ग्लेशियर स्टोरेज में मैंने रख दिया। और ये बोल रहा है कि आपको ये चार्ज लगेगा ट्रांसफर के, लेकिन जब आप रिकवर करोगे तो उसका चार्ज लगता है। मिनिमम डेज 180 यहाँ पे लिखा हुआ था, तो मैंने 180 लिख देता हूँ, तो देखो हो गया मेरा, ठीक है। तब ये कैसे रहता है देखो, अगर आपका मेरा एक ऑब्जेक्ट है मेरे S3 के अंदर, मैं इसको मतलब क्रिएट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे डॉकर डे 3 एक पीडीएफ मैंने डंप की थी। अब वो 30 डे के बाद स्टैंडर्ड 1 में जाएगी और 180 डे के बाद वो कहाँ पे जाएगी, इस डीप ग्लेशियर में जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे रूल लगा सकते हो। तो ये किस लिए होता है, देखो इंडस्ट्री में बहुत सारा डेटा होता है, जैसे कि 100 TB हो गया, 200 TB हो गया। उस समय क्या है, अगर आपको कॉस्ट कटिंग करनी है तो आपको क्या करना पड़ता है, लाइफ साइकिल रूल लगाना पड़ता है। तो इससे हम क्या करेंगे, हमारी कॉस्ट बचाएंगे, ठीक। तो वापस आते हैं, एक्सेस पॉइंट वन ऑफ दिस सर्विस है। तो अगर मैं यहाँ पे क्रिएट एक्सेस पॉइंट कर रहा हूँ, ओके, और मैं ये लोगों को एक्सेस दे दूंगा कि भाई ये एक मेरा एक पॉइंट है, एक यूआरएल क्रिएट होगा और मैं लोगों को दे सकता हूँ, ठीक है। किसके लिए, इस बकेट को एक्सेस करने के लिए, ये एक पॉइंट है, ठीक है। तो अभी हम वापस जाते हैं, और इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज है जो हमें S3 प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। और देखो, मैं यहाँ पे IAM सर्विस जो हमारे यहाँ पे रहती है अकाउंट में, तो वो उसका यूज करके हर एक बंदे को अलग अलग परमिशन दे सकता हूँ। लेट्स से कि अगर कोई डेवलपर मुझे बोल रहा है कि मुझे एक बकेट है, उसको मुझे क्या चाहिए, एक्सेस चाहिए और कुछ टेस्टिंग वगैरह करना है, तो मैं उसको इस S3 बकेट का एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी का ही मैं एक्सेस दे सकता हूँ। लेट्स से कि एक डायरेक्टरी डेटा 3 है, तो वो उसका ही मैं एक्सेस दे सकता हूँ उस पर्टिकुलर डेवलपर के लिए, ठीक है। और अगर अगर कोई डेवऑप्स का बंदा रहा और वो आपको बोले कि मुझे एक्सेस दो, तो हम उसको डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट वी हैव प्रोवाइडेड लिमिटेड एक्सेस, ओके। लिमिटेड एक्सेस हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं यूजिंग IAM सर्विस, ठीक है, जो कि हम AWS हमें प्रोवाइड कर देता है, ओके। तो हम यहाँ पे रुकते हैं, आगे देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके इन डिटेल में, ओके। थैंक यू, बाय गाइस।